that when you read the passage, it appears unjust, as it seems to be saying that the rich will get richer and the poor will get poor. But there is a riddle to be solved in this passage, a mystery to uncover. And when you know it, a new world will have opened for you. So ये जो quote है, it looks like a mystery, you know. So let's see what that mystery is. The answer to the mystery that eluded so many for centuries is in one hidden word, you know. So the gratitude is that mystery, you know, which is revealed now. So now अब हम वही same quote जब आप पढ़ेंगे, so the quote says whoever has gratitude will be given more. So जिनके पास कृतज्ञता है will be given more. Okay, कृतज्ञता or thankfulness just not from your words but from your feeling, the feeling, because जो आपके feeling है, remember the feeling charts, they are the frequencies, they are the currencies, you know. And कृतज्ञता जो है वो highest currency है in the universe. So if you want to buy anything of your dream, you have to pay that currency of कृतज्ञता or gratitude so that you can buy it, you know. So in your bank you should have sufficient uh, amount or you know, deposits of gratitude currency. Okay, so whoever has gratitude will be given more. जिनके पास कृतज्ञता भाव है उनको ज्यादा दिया जाएगा. Just remember guys, it's the feeling of gratitude is important, not just the words. Okay, he and she will have an abundance. Whoever does not have gratitude, even what he or she has will be taken from him or her. So जिनके पास कृतज्ञता नहीं है उनसे वो सारी चीजें ले ली जाएंगी. By the revelation of one hidden word, a cryptic text is made crystal clear. 2000 years have passed since those words were recorded, but true as today. They are true today as they ever were. If you don't take the time to be grateful for, if you don't take time to be grateful, you will never have more. Okay, and you do have to, and what you do have, you will lose. So you need to have, you know, this passage is saying that आपको gratitude में रहना है. अगर आपको और abundance चाहिए, अगर आप gratitude में नहीं है तो आपसे वो सारी चीजें ले ली जाएंगी. And the promise of the magic that will happen with gratitude is in these words: if you are grateful you will be given more and you will have an abundance. And the magic what you can see in this gratitude is, जो जादू है कृतज्ञता में वो ये है कि आपको abundance मिलेगा. You will be given more and more. So from the Quran, the promise of gratitude is equally emphatic. So Quran भी वही same quote कहते हैं. And remember, when God proclaimed, if you are grateful, I will give you more. But if you are ungrateful, verily my punishment is indeed severe. It doesn't matter what religion you follow or whether you are religious or not. These words from holy scriptures and Quran apply to you and your life. They are describing a fundamental law of science and of universe. So ये जो book है, it is based on plenty of research and supported by science, you know. So ये universe में जो law of attraction है, it is supported. ये जो हमारे जो scriptures है which says about the gratitude, they are supported by the fundamental law of science of the universe. Okay, so even आप अगर आप गुरु ग्रंथ साहब भी जो देखोगे, I'll show you all again in this feeling chart. Okay, अगर आप देखोगे the gratitude is on the higher frequency. ओके, तो यही गुरु ग्रंथ साहब जी भी अपने इसमें बताते हैं, अपने उन्होंने जो लिखी है किताब, तो उसमें भी उन्होंने ग्रैटिट्यूड को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है. बिकॉज he knew that gratitude is one of the highest frequency where every human has to reach. हर एक इंसान को इस ग्रैटिट्यूड की जो फ्रीक्वेंसी है वहां तक पहुंचना जरूरी है.
इसी के लिए उन्होंने वो ग्रंथ लिखी, मानवता को अपलिफ्ट करने के लिए। तो ये हमारे होली स्क्रिप्चर्स में भी ऑलरेडी मेंशन्ड है चीजों, ये सारी चीजें, बट हमने हार्डली उसको समझने की कोशिश की है, या हमें कभी समझाया गया है। सो व्हाट इज द यूनिवर्सल लॉ? आइए जानते हैं। Gratitude operates through a universal law that governs your whole life. ओके, सो जो ग्रैटिट्यूड है वो आपकी पूरी लाइफ को गवर्न कर रहा है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विच गवर्न्स ऑल द एनर्जी इन द यूनिवर्स, फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ एन एटम टू द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स, लाइक लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। सो जो यूनिवर्स में जो सबसे प्रोमिनेंट लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो कहता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यू नो, it is because the law of attraction that the cells of every living creature are held together, as well as the substance of every material object. In your life, the law operates on your thoughts, feelings, because they are energy too. So whatever you think, whatever you feel, you attract to you. Okay, so ये जो law of attraction है, because of this law of attraction in the universe, इस साइंस के मुताबिक हम जो भी सोचते हैं, यू नो, जो भी हम सोचते हैं और फील करते हैं, दे आर हैविंग एनर्जीज। ओके, और बिकॉज ऑफ दोज एनर्जी, जो हम सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं, वो हम अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी के लिए इस बुक को जब आप पढ़ते हो, तो जब हम सेशन लेते हैं, एक्चुअली हम इस इन बुक सीरीज के सेशंस लेते हैं 4 to 5, तो वहां पे हम बताते हैं कि ये क्यों जरूरी है कि जब आप अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसीज में रखते हो, ऑफ बीइंग पॉजिटिव, ऑफ बीइंग इन जॉय, आप अवॉइड करें रीडिंग नेगेटिव न्यूज और नेगेटिव सीरियल्स देखना, नेटफ्लिक्स देखना, ये सारी चीजें आप अवॉइड करें। क्योंकि वो सारी जो हम मूवीज देखते हैं, तो डेफिनेटली वो देखते देखते हमने उससे कभी फीलिंग दे दिया था, तभी हमने आज उसको अपने लाइफ में अट्रैक्ट किया है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि मैं इतना अच्छा कर रहा हूँ, बट ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था। मे बी आप कभी कुछ कभी मूवी देखते हुए उसको फीलिंग दे दिया होगा, तो आपने उसे अट्रैक्ट कर लिया होगा अपने लाइफ में। सो आप क्या सोच रहे हो, क्या अपने माइंड में डाल रहे हो, बी वेरी केयरफुल। सो दिस इज व्हाट द पावर बुक टीचेस यू। इसी के लिए कहा जाता है ना, सोच सोच के सोचे, बिकॉज यू मे नेवर नो, आप उसको अट्रैक्ट भी कर सकते हो, अगर प्रोवाइडेड आपने उस थॉट को फीलिंग दे रहे हैं, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूल। यू नो जब हम उसमें भावना डालते हैं, उस सोच में जब हम भावना डालते हैं, तो डेफिनेटली वो चीज फिर मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है। सो इफ यू थिंक आई डोंट लाइक माई जॉब, सो यहाँ पे इन्होंने कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। इफ यू थिंक आई डोंट लाइक माई जॉब, I haven't got enough money, I can't find my perfect partner, I can't pay my bills, I think I'm coming down with something, he or she doesn't appreciate me, I don't get along with my parents, my child is a problem, my life is a mess, or my marriage is in trouble, then you must attract more of those experiences. तो जब हम इस तरह की सोच रखते हैं कि मेरा बच्चे में प्रॉब्लम है, मेरी लाइफ एक मेस है, मेरा मैरिज में ट्रबल है, मेरे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मैं बिल पे कर नहीं कर पा रही, तो ये जो नेगेटिव जो चीजें आप सोच रहे हो, आप ये जो आप सोच रहे हो और उसमें फीलिंग दे रहे हो, आप फिर से याद रखना, आप उसे अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसके बजाय, अगर आपके पास कोई बिल आया है, तो जस्ट गिव ग्रैटिट्यूड टू द सर्विस प्रोवाइडर, कि उसने अपने सर्विस के लिए आपको भेजा है बिल, तो आप उसके सर्विसेज के लिए ग्रैटिट्यूड दें। एंड और जब ये कृतज्ञता भाव आ जाएगा कि कि ओके, ये लोग हमारे लिए इतना, अगर सपोज मोबाइल बिल है, या टेलीफोन बिल है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल है, यूजुअली तो उस पे सभी का एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है कि यार ये बिल इतना महंगा क्यों, इतना हाई क्यों। तो यहाँ पे आप वो पैसे को नेगेटिव दे रहे हो एनर्जी, तो डेफिनेटली वो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। तो आप उसे इस वे से लें कि ओके, आई एम सो ग्रेटफुल, मैं इतनी
ग्रेटफुल हो इस कंपनी को कि ये इतने इजीली हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके देते हैं, क्योंकि अगर हमें खुद ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होगा तो कितना सोचिए डिफिकल्ट होगा, टू बाय दोज इक्विपमेंट्स, फिर उनको इंस्टॉल करना, उनसे बिजली निकालना और घर के लिए यूज करना। डेफिनेटली तो ये सारा काम वो हमारे लिए कर रहे हैं, तो लेट्स बी ग्रेटफुल टू देम, यू नो सो उसको एक कृतज्ञता और एक थैंकफुलनेस के भाव से उस बिल को पे करें। तो जब आप खुशी खुशी पे करोगे तो डेफिनेटली वो आपके पास पैसे भी खुशी खुशी आएंगे, अच्छे से आएंगे। सो इस तरह से ये बुक बताता है कि आपके जो थॉट है ये बहुत ही लाइक दे आर प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग ऑफ योर लाइफ, यू नो so yes, next paragraph we will read it. But if you think about what you are grateful for, like I love my job, my family is supportive, I had the best vacation, I feel amazing today, I got the biggest tax refund ever, or I had a great weekend camping with my son, uh, and you sincerely feel the gratitude. See here, यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि जब आप ये सब कह रहे हैं और जब आप उस फील कर रहे हैं उस थैंक यू को और उस कृतज्ञता को और उस ग्रैटिट्यूड को, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सेज यू मस्ट अट्रैक्ट मोर ऑफ दीज थिंग्स इन योर लाइफ। ओके, सो जब आप दिल से खुश होकर के किसी चीज के लिए धन्यवाद करोगे तो आप वैसी सर्कमस्टांसेस अपने लाइफ में और भी अट्रैक्ट करोगे एज पर द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ओके, क्योंकि जो सीक्रेट बुक सीरीज है ये पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे ही बेस्ड है, इस साइंस पे ही बेस्ड है। So it works in the same, yeah, it works in the same way as metal being drawn to a magnet. Your gratitude is a magnetic, your gratitude is magnetic, and the more gratitude you have, the more abundance you magnetize. It's universal law. Okay, so आप जितने ग्रेटफुलनेस में रहोगे, ग्रेटफुलनेस फ्रॉम योर फीलिंग, ओके, उतना। और ये ग्रैटिट्यूड क्या है, ये एक चुंबक है, ये मैग्नेट है इस यूनिवर्स का। ओके, तो आप जितना उस मैग्नेट कृतज्ञता के भाव में रहोगे दिल से, यू विल हैव मोर अबंडेंस, आप और अबंडेंस को अट्रैक्ट करोगे। उस क्योंकि आप में अब वो चुंबकीय शक्ति आ चुकी है ग्रैटिट्यूड की, और उसके कारण आप अबंडेंस अट्रैक्ट करोगे अपने लाइफ में एज पर द लॉ ऑफ यूनिवर्स। आपने तो ये सुना ही होगा, लाइक you will have heard saying like whatever goes around comes around. Okay, you reap what you sow and you get what you give. Well, all of those sayings are describing the same law. They are also describing the principle of the universe that the greatest scientist Sir Isaac Newton discovered. So ये जो आप सुनते हो, what you reap, you reap what you sow, whatever goes comes around, ये जो सारे जो sayings है ये एक law पे based है, which the law which साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन ने जो डिस्कवर किया। लेट्स सी क्या क्या लॉ पे बेस्ड है ये। द न्यूटन्स scientific discovery included the fundamental law of motion in the universe, and one of which says, आइजैक न्यूटन ने बहुत सारे लॉ ऑफ मोशन डिस्कवर किए थे, उनमें से एक है एवरी एक्शन ऑलवेज हैज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। ऑपोजिट, ओके, सो एवरी एक्शन will have an opposite reaction, equal reaction. So if I am giving, अगर मैं दे रही हूं तो देने का ऑपोजिट क्या है, लेना, तो वो मुझे लेना भी होगा। ओके, सो एवरी एक्शन हैज एन ऑपोजिट रिएक्शन, तो अगर मैं दे रही हूं तो वो मुझे मिलेगा भी, वो उसी क्वांटिटी में मिलेगा या उससे ज्यादा भी मिल सकता है। सो व्हेन यू अप्लाई द आइडिया ऑफ ग्रैटिट्यूड टू न्यूटन्स लॉ, it says every action of giving thanks always cause an opposite reaction of receiving, and what you will receive will always be equal to an amount of gratitude you have given. This means that very action of gratitude sets off a reaction of receiving, and the more sincerely and the more deeply grateful you feel, in other words, more gratitude you give, the more you will receive.
तो आप जितनी उस भावना से ग्रैटिट्यूड को दोगे, उतना ही आप रिसीव भी करोगे एज पर दिस लॉ, लॉ ऑफ जो ये आइजैक न्यूटन ने जो ये लॉ बताया था, उस एज पर दैट लॉ आप जो भी दोगे वो आपको रिसीव करना है। तो अब आप इमेजिन करो आपको क्या चाहिए, वही आप दीजिए इस सृष्टि को, इस यूनिवर्स को। तो दिस लॉ वर्क्स लाइक अ अ बूमेरैंग काइंड, कि जहां पे आप एक बूमेरैंग को भेज फेंकोगे तो वो स्पिन होके आपके पास ही आने वाला है। तो जब आपके पास ही आएगा, तो इसी के लिए आज जो भी आप अपने लाइफ में देख रहे हो, जो भी अप्स एंड डाउन्स देख रहे हो, जो भी चैलेंजेस देख रहे हो, ये आप ही का जनरेटेड है, ये किसी और ने नहीं क्रिएट किया हुआ है। ये आपने कभी ना कभी वो सीड बोया था अपने में, और वो आज आपको उसका फ्रूट मिल रहा है। So let's change our destiny by being in gratitude, by because we are the magnet. Human beings are the magnet. Why they are magnet? Because of their thoughts. They can think. Not other beings can, creatures can think, but we human can think and give feeling to that, and that creates the magnet. And due to that magnet, we are attracting those kind of frequencies in our life from the universe. सो आप क्या दे रहे हो वो बहुत जरूरी है। थ्रू आउट द डे इंश्योर करें कि आप अपने आप को पॉजिटिविटी में रखें। इफ पॉसिबल आप अच्छे अच्छे वीडियोस रख सकते हैं, मूड शिफ्टर्स रख सकते हैं, लाइक चीजें जो आपके मूड को अपलिफ्ट करें। जैसे कि कोई फनी वीडियोस हो गया, या तो फिर कॉमेडी शोज हो गए, या तो फिर आपका पेंटिंग है, या कई लोगों को कुकिंग पसंद है। वट एवर दे लव, दे शुड कीप अ लिस्ट ऑफ दैट। आप वो सारी चीजें लिस्ट तैयार रखें कि अगर मेरा मूड कभी भी, मैं इस लोअर फ्रीक्वेंसी में आ रही हूँ, मैं आपको फिर से बताती हूँ द फीलिंग चार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए जानना, कि जब भी आपको लगे कि आप ये लोअर फ्रीक्वेंसीज में आ रहे हो, लाइक बोर्डम, इरिटेशन, डिसअपॉइंटमेंट, वरी, उदासीनता में भी आ रहे हो, या क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म तो करना ही नहीं चाहिए, ना ही गवर्नमेंट का, ना ही किसी भी चीज का नहीं आपको करना है, क्योंकि अगर आप क्रिटिसिज्म कर रहे हो, अगेन आप एक लोअर फ्रीक्वेंसी में जा रहे हो, और जिसके कारण आप जो चाहोगे अपनी लाइफ में वो आपको कभी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने आप को हमेशा क्रिटिसिज्म में रख रहे हो, डिसअपॉइंटमेंट्स में रख रहे हो, गिल्ट में रख रहे हो। तो आपको जब भी लगे कि आप इन सारी चीजों में आ रहे हो, अपने आप को मूड मूड शिफ्ट करना शुरू कर दें। अपने आप को इंश्योर करें कि मैं किसी अच्छी चीज को सोचूं। सोचना क्या है, आप अपना पेंटिंग शुरू कर सकते हो, या आप, कई लोगों को बाहर पार्क में जाना बहुत पसंद है, वहां वॉक करना अच्छा लगता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा उस दिन शॉपिंग कर लेंगे तो शायद आपको बहुत अच्छा लगे, तो गो फॉर इट। ट्राई टू शिफ्ट योर मूड। इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, बट कुछ आप देखिए, आप ही को अपने आप पे मेहनत करना है, कोई और मेहनत नहीं कर सकता। कोई और आपके लिए मेहनत नहीं कर सकता, आप ही को, क्योंकि हम ही रचयिता है अपने वर्ल्ड के। सो वी ओनली हैव टू टेक दैट स्टेप। जब आपको अवेयरनेस आ गई है कि मैं इन लोअर फ्रीक्वेंसीज में हूँ, देन विद हेल्प ऑफ दोज मूड शिफ्टर्स आप अपने आप को वो फ्रीक्वेंसी में से उठा करके इन जो अच्छे वाले फ्रीक्वेंसीज हैं, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज जो व्हाइट में यहाँ लिखे गए हैं, लाइक सेटिस्फैक्शन मिलाए, होप मिलाए, एंथुजियाज्म मिलाए, एक्साइटमेंट मिलाए, यू नो इन सारी फ्रीक्वेंसीज में लाए विथ हेल्प ऑफ दोज मूड शिफ्टर्स। जैसे कि आप कॉमेडी मूवीज देख सकते हो, या सीरियल्स देख सकते हो, या जो चीज जो आपको खुशी देती हो वो करना शुरू करें, ताकि आप उस चीज से, उस फ्रीक्वेंसी से आप ऊपर उठे। यू नो क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज आप, और ये भी चीज जरूरी है कि जो इमोशन आया है, पहली बात तो उसे एक्सेप्ट कर ले। ऐसा नहीं है कि उसको ओवरकम करना है या उससे भागना है। वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव इमोशन भी आया, उसको डीपली फील कर ले, उसको उससे बोले कि यस आई फील यू, आई फील यू। अगर रोना भी आए, उस इमोशन के साथ रो ले, और थोड़ी देर के बाद उसे जस्ट रिलीज कर दे, एंड जस्ट से नाउ आई रिलीज यू, नाउ आई रिलीज यू। तो ये एक 5 मिनट का प्रोसीजर है, बट ये करने से एटलीस्ट आप उसको आप फील भी कर सकते हो, उस इमोशन को डीपली, एंड उसे एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्ट करके नाउ यू कम टू दिस सेटिस्फैक्शन। दिख रहा है आपको एक एक व्हाइट लाइन के अबव, जो जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में फर्स्ट है सेटिस्फैक्शन। तो जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कोई चीज को, तो आप सेटिस्फैक्शन पे आ जाते हो। आप उसके रेजोनेंस में आ जाते हो, एंड वहां से आप देन आप
फीलिंग्स की तरफ मूव करना शुरू करें, क्योंकि अचानक से नेगेटिव टू पॉजिटिव में आना थोड़ा टाइम लगता है, तो पहले उसे एक्सेप्ट कर लें अच्छे से उस नेगेटिव सिचुएशन को, आंख बंद करके उस पर विचार करें व्हाट इट इज ट्राइंग टू टेल यू, एंड दिस इज हाउ इट विल हेल्प. थैंक यू सो मच. इट्स टाइम अप. आई होप ये सेशन आपको कुछ लाइट दिया, आई मीन आप में कुछ लाइट आया हो आपकी सोच के प्रति कि हमें क्या सोचना है थ्रू आउट द डे, कैसे हमारी सोच हमारे विचार बना रहे हैं. एंड ग्रेटिट्यूड इज वन ऑफ द बेस्ट टूल विच विल चेंज योर लाइफ. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. या थैंक यू अनीता. सो ये सेशन मैं भी कर रही हूँ तो 40 डेज लगता है, और पर आपने आधे घंटे में पूरा इसका बता दिया, वो बता दिया. थैंक यू सो मच.